Vanshika Gautam. I am from Himachal Pradesh, Khumarvi, district Bilaspur. I am of 12 years old. I study in Shiva International School, Khumarvi, and from there my first journey started from dance, and then I started dancing in the school programs and in the fairs, etc. My hobbies are dancing, playing, drawing, and I also want to become a handball and a basketball player. Early in the morning, I wake up and I go to daily ground. And now in the school also there are so many competitions like dance competition, drawing competition. I participate in all and I got prizes in annual function. Enormous continues.
afternoon to all, and I am Dr. Shilpa Goyal, Principal, Shiva International School, Ghumarvi, District Bilaspur, Himachal Pradesh. One of our students, Vanshika, she is a very good student, very good at studies as well as co-scholastics. She has participated and she has cleared 4 rounds of dance championship, that is Kisme Kitna Hai Dam, and now she has got selected for the final round. In school also she put herself in her shoes by her own because she is very talented. She is studying here from class KG and we have seen her doing all the activities with full vigor and she is the one who is always there to help others as well as to make them learn what new is going on. She is always ready to accept the new things. And I wish her all the best, that she bring laurels to the school, to the parents and to the city. And I wish her all the best. Hello, I am Anjali Mahajan. I am Vanshika's class teacher. I teach them English. Vanshika is very brilliant student. She is excellent in studies also. Her behavior with her friends is very friendly. She is very friendly with everyone. And she always participates in every co-curriculum activity which we conduct in the school. Vanshika is a very good student. She is very excellent in the studies and in all the activities. Her behavior is very friendly. She always participates in every co-curricular activities in the school. She has cleared 4 rounds of Kisme Kitna Hai Dam and we are very happy for her. And we all hope that she will definitely win the final round of Kisme Kitna Hai Dam. And we all will pray and wish good luck for her. We pray to God that she will be definitely succeed in this and make us feel proud, her parents, her teachers, her school, her area and Himachal also. Thank you. Today we will learn about nouns, right? Do you know what are the nouns? Yes, teacher. So who will tell me what are the nouns? Raise hands. Yes. Noun of the place of person, place, and land. Very good. We have already studied about nouns in our previous classes also. Here in 7th class, we will elaborate this topic. How many type of nouns are there and how we will identify them. Right? Clear? Okay. So have you read about kind of nouns also in previous classes? Yes. How many kind of nouns you have? 5. Name them. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Very good. Excellent. So can you give me an example of collective noun? Yes, teacher. Any one example? Yes, Shivam Gautam. A bunch of? A stack of wood or a bunch of leaves. Very good. Sit down. And can anybody explain what are the abstract noun? Yes. Abstract nouns that represent any emotion. Yes. And we cannot touch that. Right? Sit down. Okay, now Vanshika, you just explain what are the common nouns. That common noun are the common things, like which do not have a proper particular name. Very good. Sit down. Okay. So we will do one exercise given on page number 11. Open page number 11. You just start doing this exercise given. The exercise is given of collective nouns. Right? Collective noun is the name of a group, person or things taken together as a whole. So, look now, here are given so many examples. Class of students, a corps of singers, band of musicians, crowd of people, right? A group of dancers, group of artists,
staff of employees and tribe of natives. Correct? Okay. So students, you will complete this exercise at home. And for my dance journey start from the when I was of 4 years. My Bua was dancing in her college program, and I watched her, and I got on the stage, and I started dancing. And now I would like to share my daily routine. So my daily routine, first of all, I wake up early in the morning. Then I take a bath and go to and do study for some time. Then I go to school. After coming, I do drawing, dance practice. Then I go to ground. After that, I play and enjoy with my family. This is all about my journey of dance. I would thank to KKHD once again and my family, and I will make sure that I'll proud my family and my teachers and my Kumarvi. I will bring a trophy of KKHD. Thank you.
नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं घुमारवीं ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में CID विंग में कार्यरत हूं। वंशिका मेरी बेटी है, जिसे बचपन से ही डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये अपने फ्री टाइम में जब भी घर पे होती है तो डांसिंग, अपनी पढ़ाई और साथ साथ में सिंगिंग वगैरह का भी इसको शौक़ रहता है। इसके साथ साथ ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा चुलबुली भी है और ये बचपन से ही मतलब जब ये छोटी थी तभी से ये डांस में बहुत ज़्यादा रुचि रखती है। एक बार जब ये छोटी थी तो प्रैक्टिस करते करते इसका हाथ की रिस्ट जो है वो फ्रैक्चर आ गया था उसमें डांस करते करते, तो 2 महीने तक इसको प्लास्टर रहा और उसके बाद भी जब प्लास्टर उसका 2 महीने के बाद प्लास्टर हटा तो उसके बाद भी ये अपने जो डांस में इसकी जो रुचि थी उसमें ये मतलब कंटिन्यू रही और उसके बाद इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे को चोट लगी है या कुछ है। और साथ साथ में ये स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा वो करती है, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, उसमें भी वो प्रैक्टिस करती है, डेली खेलती है, ग्राउंड जाती है। और इसके साथ साथ इसके मतलब जो नेचर है इसका, ये शांत स्वभाव की है लेकिन ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है। जब इसको किसी चीज़ की जिद आ जाती है तो मतलब जब तक उस काम को कर नहीं लेती है तब तक पीछे नहीं हटती है। मतलब एक बार जो काम पकड़ लिया फिर जब तक वो नहीं करेगी तब तक उसका मतलब उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और साथ साथ में किसमें कितना है दम में 4 राउंड क्लियर करके ये ग्रैंड फिनाले में फाइनल राउंड में पहुंची है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये ग्रैंड फिनाले जीत कर अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जी, मेरा नाम मोनिका गौतम, मैं हिमाचल प्रदेश घुमारवीं की रहने वाली हूँ। मैं वंशिका गौतम की मम्मा हूँ। ये वंशिका को शुरू से ही डांस का बहुत शौक है। जब ये 4 साल की थी तो इसने अपनी बुआ के साथ कॉलेज में डांस किया था, स्टेज पर छोटी सी ने। और इसको जब भी देखो इसको डांस, कोई राइटिंग या ड्राइंग का बहुत शौक है। और इसको खाना बिल्कुल ज़्यादा खाने में शौक नहीं रखती। इसको मतलब ज़िद्दी बहुत है। अगर कोई काम के लिए मतलब कुछ भी बोल दें तो कहना भी कम ही मानती है, ज़्यादा नहीं मानती है। इसको सिर्फ डांस 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 के लगा रहता है, डांस की बहुत शौक रखती है। इसने किसमें कितना है दम में फाइनल 4 राउंड जीत कर फाइनल राउंड में पहुंच गई है। उसमें मैं आशा करती हूँ भगवान से कि ये फाइनल राउंड जीत कर अपने घर का, अपने परिवार का, अपने स्कूल वाले टीचरों का नाम रोशन करे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार जी। ये बहुत मतलब शांत स्वभाव की है, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं करती है किसी से, मतलब अपने में ही रिजर्व रहती है। और इसको कपड़े पहनना, बहुत ज़्यादा कपड़े पहनना का बहुत शौक़ रखती है। कहीं भी इसके बर्थडे सेलिब्रेशन हो, जब कुछ हो, इसको जल्दी जल्दी कहीं कपड़े पसंद नहीं आते हैं। और इसको मतलब इसके लिए कुछ गिफ्ट लेना मतलब 3 घंटे या 4 घंटे मतलब पार है। इसको कहीं भी ड्रेस का कोई पसंद नहीं आती। इसको मतलब ज़्यादा चंडीगढ़ वगैरह या यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, ये शौक़ रखती है। घूमने फिरने का बहुत शौक़ है इसको।
जी, मैं संदीप कुमार गौतम घुमारवी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। वंशिका मेरी भतीजी है, अच्छी डांसर भी है और इसे डांस का बहुत अच्छा शौक़ शुरू बचपन से ही है और ये किस्में कितना है दम में फाइनल राउंड में पहुंची है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ये फाइनल राउंड जीतकर अपने घुमारवी का और अपने माता पिता परिवार का नाम रोशन करे। जब ये घर पे फ्री होती है तो ये डांस और पढ़ने लिखने में अपना समय व्यतीत करती है। Hello everyone, my name is Sadhana Gautam and I am the sister of Vanshika Gautam. She is selected in KKHD Kisme Kitna Hai Dum grand finale and she has crossed the 4 rounds of it, and I am very proud to be that her sister, that she has given us opportunity to speak. I am very proud to be her sister that she have given me opportunity to speak about her. And from starting only when she was of 4 years, then she started to do dance, and we also see that how she is doing every time she was doing dance only. And when we see that every time she was doing dance, and we thought that she can do dance and she can go, and then we see that KKHD have given her opportunity to show her dance and get opportunity. So thank you KKHD to give her opportunity, and it's a platform for everyone. To everyone they are giving platform that they can show their talent. And thank you KKHD once more. Thank you. Hello everyone, I am Bhavna Gautam, sister of Vanshika Gautam. Vanshika is very well in dance, she dances very well, and I wish that she will win in KKHD, provided her a platform in which she can show her talent, and I wish from God that she will definitely win this competition and she will make us proud, our city proud and parents proud. So wish her good luck and thank you so much. Sometimes she plays with us carom, cricket and ludo, and she did cheating every time, and she is very well in dance, and I am appreciating her efforts that she danced very well in KKHD. 4 rounds she has crossed and now she is in final, and I wish that she will definitely bring this trophy to our home. Thank you KKHD. No mistake.
नमस्कार जी, मेरा नाम रीना गौतम है। मैं वंशिका की ताई मामा हूँ। वंशिका बहुत अच्छा बच्चा है, ये शुरू से ही पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेती है, मगर इस बच्चे को शुरू से ही डांस करने का बहुत शौक है। जब ये बचपन में छोटी थी तो तभी से ही इसने मतलब डांस का इसको एक पैशन है कि मैंने डांस करना है तो करना है। तो मतलब इसने मतलब हमारे घुमारवी में जब भी फेयर होते हैं तो एवरी ईयर ये उसमें पार्टिसिपेट करती है और उसमें विनर भी रहती है। तो इस बच्चे ने मतलब ऐसा नहीं है कि घुमारवी फेयर में ही, और भी कहीं भी कल्चरल एक्टिविटी होती है तो उसमें ये पार्टिसिपेट करती है। और डांस के साथ साथ ऐसा नहीं कि पढ़ाई में वीक है, स्कूल में भी जो इनके जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें सब में पार्टिसिपेट करती है और उसमें इसको मैक्सिमम प्राइज़ मिलते हैं। तो बच्चा सारी एक्टिविटी में अच्छा है, बस ये कि थोड़ा मतलब मिक्सअप कम होती है, बोलती कम है। बाकी इसको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, खाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब्जियां मतलब वेजिटेबल्स बहुत कम खाती है और फ्रूट्स वगैरह वो बहुत कम खाएगी। ये बाहर की चीज़ें भी कोई ख़ास इसमें नहीं है कि मैंने खा ही लेना है, मतलब खाने का ज़रा भी शौक़ नहीं है इसको। बाकी पढ़ने में बहुत अच्छी है, सबसे मिलती जुलती है, ऐसा नहीं, फैमिली मेम्बर के साथ बहुत प्यार रखती है। मैं इसकी ताई हूँ, मेरे साथ बहुत अटैचमेंट है। स्कूल से आती है तो मेरे साथ इसने थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा इसने मेरे साथ पूरी रूटीन शेयर करनी है कि स्कूल में मैं ऐसे रही, मैंने ताई मामा ये पढ़ा, मेरे ऐसे टेस्ट हुआ और ये मेरे मार्क्स आए हैं। तो मतलब सारी डिस्कस करेगी घर में आके। और ऐसा नहीं कि बच्चा मतलब और बच्चों के साथ भी ऐसे फ्रेंडली रहती है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करती। और मेरी बेटी साधना वो थोड़ा शरारती टाइप की है, मगर ये थोड़ा ऐसी नहीं है, चुलबुली है, नटखट है, सबके साथ प्यार रखती है। और इसके बारे में जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, बहुत सेंसिटिव बच्चा है, कभी किसी के साथ कोई मतलब बदतमीजी नहीं करती है, बहुत सेंसिटिव है। तो अभी ये KKST वालों ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें हम बच्चे का थोड़ा टैलेंट है उसको उभार के बाहर लाएंगे। तो इन्होंने हमें मौका दिया और हमारे बच्चों ने 4 राउंड इसमें वंशिका ने क्लियर कर लिए हैं और KKHT के फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। तो मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि बच्चा आगे ट्रॉफी लेके आए, जीत के आए, हमारे घर वालों का, स्कूल का, हमारे शहर का और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम निशा शर्मा है। मैं घुमारवी की हूँ और मेरे ससुराल सोलन में है और मैं यहाँ पे आई हुई। वंशिका जो है वो बहुत अच्छी बच्ची है और सेंसिटिव बहुत अच्छी है, मतलब डांस करने में हर एक चीज़ में अच्छी है, निपुण है। किसमें कितना है दम, 4 राउंड क्लियर करके 5th में पहुँच गई भी, ये भी अच्छी गर्व की बात है हमारे लिए। तो आजकल बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि बहुत अच्छे हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा अगर हमारे टाइम में होता हम भी कहीं आगे पहुँचे होते, हम भी ऐसे ही हैं। और इसके पापा भी बड़े अच्छे हैं, डांसर हैं, छोटे होते भी अच्छा करते थे। जो बोलते हैं ना, बच्चे तभी सीखते हैं, अगर जो माँ बाप में टैलेंट होएगा वही बच्चे सीखते हैं। तभी थोड़ा बहुत अपने माँ बाप से भी सीखी हुई। और ये अच्छी है, खाने पीने में तो बड़ी कंजूसी करती है ये। और कभी एक बार मेरे को बोला कि निशु बुआ भी हमने भिंडी पनीर बनाना, पर उसमें प्याज नहीं डालना। मैंने बेटा ऐसा बात नहीं है, प्याज तो पड़ता है। तो बोलते निशु बुआ तब नहीं मैं खाऊंगी। फिर मैंने वैसा ही बनाया, इसने खाया। और ये अगर प्याज भी आए तो ऐसे चुक चुक मतलब चुन चुन के अलग कर देती उसको। और वो बस प्याज नहीं खाना, ना लहसुन खाना, बस ये चपाती खाती है, चावल कम पसंद करती है ये। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगी कि ये बच्ची आगे पहुँचे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और ये सारे अपने परिवार का
और अपने शहर का नाम रोशन करे। मेरी भगवान से ही अरदास है कि ये बच्ची आगे सक्सेस होए और जीत के आए। धन्यवाद। Station to receive my elder sister who was coming from Delhi. My sister is a very gorgeous girl and does not mind traveling all alone to any part of the world. Once she had to go to Madras for her interview. My mother had asked my elder brother to go with her, but my sister put her foot down firmly, saying there's absolutely no need. I'm not a kid and don't need anyone to hold my hand. Mother, horrified at her words, had exclaimed, "Good gracious, who on earth has ever heard of a girl going on such a long journey?" My sister merely shrugged and said, "Aren't you aware that girls from Bengal have been going on solo flights? Folks are no longer as cowardly as they used to be." My sister had tremendous determination. Eventually, she did not manage to go off all alone. The very next day, we heard on the wireless that the Madras mail was involved in an accident. Naturally, the entire household was worried. Mother stopped eating while my father and brother dashed about her, there and everywhere, in quest of news. My brother left for Madras by the very same evening. The next day, my sister arrived from Madras. The interview went off all right. No need to worry. The accident had taken place just 7 miles away from Madras. The engine was damaged and the first few bogies had been derailed and battered out of shape. Luckily, my sister's bogie had not been affected too much. She had maintained her cool and got down from the train. Then she had walked to a local shop, borrowed a bicycle, and cycled down to the place of interview. Everyone had admired her remarkable presence of mind. But in spite of getting the job, my sister did not stick to it for long. She hates being pulled up in the same city for too long. नमस्कार जी, मेरा नाम इति गौतम है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर घुमारवीं की रहने वाली हूँ। वंशिका गौतम मेरी भतीजी है। KKHD के 4th राउंड क्लियर करके इसने 5वें में अपना स्थान बनाया है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये ग्रैंड फिनाले भी जीत करके ट्रॉफी हमारे घर परिवार लाकर अपने प्रदेश और परिवार वालों का, स्कूल वालों का नाम रोशन करे। डांस का इसको बचपन से ही शौक़ है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो स्टेज पे मेरे साथ ही आकर इसने डांस अपना पहली बार शुरू किया था मुझे देख के, और तब से ही ये स्टेज परफॉर्मेंसेस करती रहती है। और जहाँ भी स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं, समर फेस्टिवल होते हैं या विंटर फेस्टिवल होते हैं, ये वहाँ जा कर के अपना टैलेंट शो करती है और हमेशा प्राइज़ जीत के तो आती है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि ग्रैंड फिनाले विन करके ट्रॉफी हमारे घर लाए और हम हमारा परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम अश्विनी कुमार गौतम हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, तहसील घुमारवीं में मेरे घर है और यहाँ का बस घुमारवीं रहने वाला हूँ। ये जो मेरी वंशिका है, पोती है, इसमें छोटे होते ही इसको डांस करती रहती थी। ये मैं भी देखता हूँ ये बच्ची क्या करती रहती है, तो इसी तरह से इसको ऐसी आदत पड़ गई। मैंने बोले तू पढ़े भी कर डांस की तरफ ज़्यादा जा रही, लेकिन पढ़ती भी रहती है। ऐसी बात डरा डरू के डरते जाए अपने आप फीलिंग करके पढ़ती भी रहती। पढ़ने में देख लिया आपने, इधर जैसे इसने इंग्लिश में किया तो पढ़ी तभी बोल सकता आदमी। तो इसको मतलब शुरू से ही ऐसी आदत है। उसमें फाइनल में अब जा रही है
मेरी दुआ है कि ये फाइनल में फर्स्ट आए और अपने इस घुमारवीं बाज़ार का, अपने परिवार का और हिमाचल प्रदेश का सभी का गौरव मिले। खुशी होती है जो भी कोई भी बच्चा निकलता है अपने, तो सभी को, माँ बाप को या अपने इस प्रदेश को या घुमारवीं लोगों को, तो यही दुआ करता हूँ कि ये फाइनल में 5वें राउंड में जीत के आए और उससे हमें ज़्यादा खुशी। नमस्कार जी, मेरा नाम शकुंतला गौतम, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर घुमारवीं की रहने वाली हूँ। मैं वंशिका मेरी पोती है। ये बहुत ही डांस में बहुत चुस्त है जी। 4 साल की थी जब से इसने डांस करना शुरू किया था। तो अब जब भी स्कूल से आती है तो मेरा फ़ोन छीन करके एकदम से शीशे के आगे डांस करने लग जाती है कि दादू फ़ोन दे दो। और खाने पीने के लिए भी बहुत ही मतलब ऐसा है कि दादू ये बनाना, कुछ भी बनाना तो सिंपल बनाना, इसमें प्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ बनाने के लिए बोलती है, चोरी से तो सिंपल चीज़ें बनवाने के लिए बोलती है। और इसका ये बहुत ही है। और KKHD में अब 4 राउंड क्लियर करके फाइनल में पहुंच गई है। तो मैं यही प्रार्थना करती हूं कि हमारा बच्चा फाइनल राउंड क्लियर करके हमारे घर का, परिवार का और अपने स्कूल का, प्रदेश का नाम रोशन करे। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार गौतम है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर घुमारवीं का रहने वाला हूँ। वंशिका मेरी पोती है और पढ़ाई लिखाई में तो ये बहुत ही तेज़ है और खेल कूद में भी बास्केटबॉल, हैंडबॉल वगैरह में इसका बहुत ही रुचि है। और जब ये छोटी सी थी तो ये डांस करती रहती थी। और हमारे यहाँ ग्रीष्म उत्सव होता है, बहुत बड़ा फेयर होता है, उसमें भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और पहला स्थान प्राप्त करती है। किसमें कितना है दम एक बहुत ही अच्छा मंच है। बच्चों को अपनी प्रतिभा निहारने के लिए एक अच्छा मंच मिला है और मैं आशा करता हूँ किसमें कितना है दम कि ये फाइनल राउंड में पहुँच चुकी है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ भी ये प्रथम स्थान ग्रहण करे और घुमारवीं और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करे। धन्यवाद।
learning exercises and play basketball. After that, when I'm going to school, before that I'm going to temple and praying to the God for my good day. And I also love to buy things like stationeries, dresses, shoes, etc. And I love to travel everywhere because I love traveling. This is all about me. Thank you. Members come in our school, and told us about that if you want to participate, you can fill a form and you can come to Shiv Shakti school to give audition. So first audition was held in Shiv Shakti school and second, third, fourth auditions also in Shiv Shakti school. Now I would like to thank my family, my teachers and my principal ma'am Dr. Shilpa Goyal to support me how now I'm here. So all they give me a support, and now I reach in the grand finale of KKHD. And the big hand to reach in the KKHD grand finale is of my Bua, because there is not any teacher in the Gumarve, dance teacher, and my Bua teach me how to dance, and I learned from there, and I got selected in KKHD season 10 final round. So first of all, I would like to thank KKHD to give this opportunity and a platform to dance, because there is no dance platform. There is many dance platforms here, but sometimes we can't reach there. So KKHD provided us a platform